एक मिनट में ओके ऋत्विक स्टार्ट करो। ठीक है। से स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करो। ठीक है। Good afternoon, everyone. Commencement of under KCC ITM IIC is yet another path-breaking initiative. IIC fosters updation of knowledge with the out-of-box thinking while providing relevant resources and support, enhancing skill set for the students. Kapila is a national program launched today and commenced by AICT to overcome current limitations in our innovation ecosystem and drive towards appropriate awareness, particularly among the students of higher education. Now, I would like to welcome Mr. Kuldeep Sir, Assistant Professor, Department of Computer Science, to share his views on Kapila. Professor Kuldeep Sir is an excellent teacher, outstanding researcher, and a wonderful human being. Welcome, sir. Okay, thank you ऋत्विक, thank you very much. First of all, very good afternoon, respected chairman sir, director sir, and all HODs and faculty members, and my dear students. First of all, myself Kuldeep Kumar. I am assistant professor in CSC department, KCC ITM Engineering College. Today, I am just give a very small review, or just tell a small something about the Kapila. It is a national level program that is uh, organized by Ministry of Education in in India. ठीक है. Just I will just starting from the beginning. Just small words I will say about the Kapila. Kapila is a program that is tell you about how you can uh, aware about the intellectual property rights. In India, nobody know how we can fill the patent of our innovation. So that it is a very small initiative taken by the government of India to to give a very small to give a how to um, how to file a patent in India. It just give a technology. Okay, it just give a small brief. Okay, let me start now my presentation. This is my index that my site that my presentation cover these points. First of all, I will be introduce you, give you the introduction to Kapila. Second, I will just introduce you what is IIC 3.0. Now, after that, I will be give a small brief about the aim of Kapila. Next slide, next will contain the what is intellectual property, and next slide is contain the types of intellectual property rights in India. And then I will discuss some importance of the IPR. Then I give you the references. So let's begin. Kapila is a CLAM program of IP literacy and awareness education campaign. It will be organized by Union Education Ministry by our Honorable Education Minister Shri Ramesh Pokhriyan Nishank ji. It will start this program on 15th of October 2020. It is it is a IP literacy day. It is celebrated as a IP literacy awareness program. The full form of Kapila is CLAM Program for Intellectual Property, Literacy and Awareness. Ministry of Education on 15th of October 2020. It is the birth anniversary of our former president and scientist Dr. APJ Abdul Kalam. On this day, they will be organized a 9-day seminar on this. It is this seminar starting from 15th October and ending on 23rd of October.
This seminar just say the motto of this seminar is that higher education students and faculty members know how we can patent, how we can file the patent, what is the procedure of filing the patent, and what are the uh, uh, return back of the patent. Okay. So they will organized by Institution Innovation Council. The Institution Innovation Council annual report is come on 15th of October. The report, in this report, they will launching a new report ISC 3.0 in which they can tell about the Kapila. Now, on that day, on 15th of October, the Union Ministry decided that 15 to 23rd October in every year they will be celebrate as a intellectual property literacy week every year. Okay. First of all, I will now second I will tell you what is IIC. IIC basically a institution innovation council. The first institution innovation council, there are three annual reports are come. First is 1.0, second one is IIC 2.0, and third one is IIC 3.0. In IIC 3.0, they will be tell about the Kapila. This institution innovation council was established by the Ministry of Education in 2018. The purpose of this institution innovation council is that they try to tell about the higher education institutions and students, faculty members, how we can give a innovation idea, and this innovation idea, how we can represent this innovation idea in practically or in application program. So in the first phase of IIC 2.0, they will establish a innovation cells in colleges. They cover up around 1700 higher education institutes in which they will be cover the open the institution cells. Now in the report of IIC 3.0, they will establish 5000 education institutions. In 5000 education institutions, they will start their innovation cell. So they will be link all the colleges with this innovation cell through online. The purpose of this is that the our young students and faculty members, if they have some idea in their mind about the new research, about the new patent filling, ठीक है ना, and new thing, so that they will be give this research to the direction, or we just give aware about how to we can patent file. Okay. Now next slide. Now we can tell you about the aim of Kapila. The aim of Kapila is that under this campaign, student will be given information about the correct system of application process for patenting their invention and patenting the technology, and they will be aware of their rights. Mostly in India, only IITs, NITs, and CSIR, they know how fill the patent, and they know what they give after filling the patent. But some other colleges like our private universities and some other national and national and state universities, only some few people know, but not everybody know how to fill the patent and what are the benefits of the patent. So this program is just only tell higher education students and faculty members how we fill the patent. Okay. Now we tell you what is intellectual property. In our slide, I'm going to tell you that in Kapila, Kapila is a CLAM program for IP literacy and awareness. IP means intellectual property. So, but just give us a small brief about intellectual property is idea, information, and knowledge. Is simply a property that include the intangible creation of the human intellect. Basically, intangible is that the idea is come in your mind and you implemented that idea in the application program or some hardware. Intangible, we can say that
समथिंग दैट इज, जो मतलब कहने का मतलब है कि ये नहीं है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग द सम एप्लीकेशन। ओके। तो अगर हम इसको यूनिवर्सिटी के कंटेक्स से देखें, यूनिवर्सिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंटेक्स से देखें, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग रिसर्चर्स हैं, हम स्टूडेंट, आप स्टूडेंट्स हो, मैं फैकल्टी हूँ। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के पर कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तो इसको उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल में आपका बेसिकली क्या आता है, क्रिएटिव आउटकम, जो आपने सोचा है उस चीज़ को आप किस तरीके से, क्या आउटकम आएगा। प्रॉपर्टी में आपका आता है व्यू एज ए ट्रेडेबल कमोडिटी, मतलब जो आउटकम आपके, जो आपने चीज़ सोची है, जो आपकी चीज़ आपके माइंड के अंदर है, उसको आप ट्रेड में कैसे कन्वर्ट करोगे। ट्रेड का मतलब है कि वो आपको क्या रेवेन्यू दे सकता है। ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आपका आता है कोई इन्वेंशन आप लोग कर रहे हो। ठीक है, जैसे हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट एक बच्चा है, उसने अभी ब्रेक सिस्टम के ऊपर काम किया था। तो उसने बताया था कि ब्रेक की स्पीड, किस स्पीड में कितने ब्रेक लगनी चाहिए। तो उसने इस चीज़ का पेटेंट फाइल किया हुआ है। ठीक है। दूसरा आपका कोई ब्रांड नेम हो गया आपका, जैसे कि आप कोई अपना स्मॉल बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर कि आप बता रहे हैं कि ये मेरी ब्रांड है, जैसे कि आपने कोई कॉफ़ी शॉप और कुछ भी खोला है। दूसरा, तीसरा आपका हो गया सॉफ्टवेयर कोर्स। अगर हम बात करते हैं आईटी और सीएससी के स्टूडेंट्स की, या किसी भी फील्ड, किसी ब्रांच की, अगर कोई बच्चे का सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, अगर उसने कोई सॉफ्टवेयर कोड लिखा है, जिससे कि जैसे कि गूगल सर्च एल्गो हो गई, ठीक है, उससे बेटर कोड उसने लिखा कि जो अगर मैं सर्चिंग करूंगा इस कोड बाय यूजिंग दिस कोड, तो मेरी जो सर्चिंग होगी वो बहुत ज़्यादा मिनिमम से मिनिमम टाइम लेगी। ठीक है। या कोई सॉन्ग आप गा रहे हैं, ठीक है ना, वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया। ठीक है ना, या कोई लिटरेचर आपने लिखा है, कोई कविता लिखी है आपने, या कोई बुक लिखी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इसके अंदर आपका लैंड भी आती है। ठीक है। इसके अंदर किसी कंट्री का आउटकम, किसी कंट्री के स्टेट का किसी पर्टिकुलर कोई फोक डांस हो, या कोई भी अ, खाना हो या पीना हो, सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है। तो ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ओके। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है, ये कितने टाइप्स के होते हैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये 6 तरीके के होते हैं, 6 टाइप। पहला आपका है कॉपीराइट, दूसरा है आपका ट्रेडमार्क, थर्ड है आपका डिज़ाइन, फोर्थ है आपका पेटेंट, फिफ्थ है आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन, और सिक्स्थ है आपका ट्रेड सीक्रेट। मैं वन बाय वन आपको इस चीज़ों के बारे में बताऊंगा है क्या चीज़ें ये। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप वन, जिसका नाम है कॉपीराइट। कॉपीराइट आप लोगों ने देखा होगा, बेसिकली एक लोगो होता है जो कि एक सर्कल के अंदर लिखा होता है, लो करके सी, आपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है। तो कॉपीराइट का मतलब होता है राइट टू क्रिएट ऑन इट्स ओन लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क, मतलब जो चीज़ आपने क्रिएट करा है, ठीक है ना, अपना कोई लिटरेसी के अकॉर्डिंग या आर्टिस्टिक वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसको कॉपीराइट देना, ताकि उसको आप यूज़ कर सकें। ठीक है। इसका आप लोगो देख रहे होंगे, इसके अंदर एक सर्कल के अंदर सी लिखा हुआ है। ठीक है। ये डिपेंड करता है किस तरह का आपका वर्क है उसके ऊपर। ठीक है। तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, अगर बताऊं कॉपीराइट, अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि कॉपीराइट का जो वैलिडिटी पीरियड है वो कितना होता है, तो ये किसी किसी को पता होगा, सबको नहीं पता होगा। बेसिकली कॉपीराइट का जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 60 ईयर्स का होता है, जब तक आपकी लाइफ है। ठीक है ना, और आपकी लाइफ के बाद भी आपकी डेट ऑफ डेट से लेकर के तब तक चलता है। तो इसके अंदर आपका आ गया क्रिएटर, जो भी आपने कुछ नीचे क्रिएट करी है। राइटर आ गया आपका, कोई आप चीज़ लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, कोई गाना लिख रहे हैं। ठीक है। पेंटर आपका, कोई आपका अपने आर्टिस्टिक वर्क करा है। ठीक है। कोई बुक आ गई, कोई बुक आपने लिखी, जैसे आप सी की बुक पढ़ते हैं यशवंत कनिट का, तो वो पेटेंट है किसका, यशवंत कनिट का, कॉपीराइट है उनका। ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया आपका, ठीक है ना, कोई प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आपका ऑफिस यूज़ करते होंगे। ठीक है ना। ठीक है। इस तरह की चीज़ होगी। सेकंड हम यूज़ करते हैं इसके अंदर ट्रेडमार्क। बेसिकली ट्रेडमार्क का काम क्या होता है, किसी कंपनी, आपने देखा होगा जब भी आप कहीं मैकडी में जाते हैं या कैफे कॉफ़ी डे के अंदर जाते हैं, या आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं, या केएफसी में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ही यूज़ कर रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, या नाइक के शूज़ वगैरह आप यूज़ करें, तो उस पर एक लोगो बना होता है। दैट लोगो इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। जैसे आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे जीमेल लिखा हुआ है। ठीक है, जीमेल की देखिए छोटा सा उसके साइड में लिखा हुआ है टीएम, ट्रेड में आपको पॉइंटर से दिखाता हूँ। जीमेल लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है टीएम, टीएम इज द ट्रेडमार्क, यानी कि गूगल का ट्रेडमार्क क्या है, ये है।
ऐसे ही आपका आ गया मैकडोनाल्ड्स। ठीक है, इसमें स्मॉल करके लिखा होगा इस तरीके से ट्रेडमार्क, ये लिखा है आर रजिस्टर्ड। ये आपका कॉफ़ी का है। ये आपका, जैसे मैंने और भी एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे कि मैकडोनाल्ड्स आपका हो गया, नाइकी आपका हो गया, कोका कोला हो गया। ठीक है, केएफसी चिकन का हो गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया आपका, ये एप्पल का ट्रेडमार्क है। ठीक है, तो ये सब ट्रेडमार्क है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल। ठीक है, उसके बाद जो इन ट्रेडमार्क्स को वैलिडिटी होती है वो 10 साल तक की होती है। ठीक है, 10 साल के बाद फिर आप थोड़ी सी फीस देकर इसको दोबारा से रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट में तुम्हारा आपका आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन भी तुम्हारा एक तरीके का आईपीआर के अंदर ही आता है। डिज़ाइन में क्या होता है, जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे मोबाइल फोन्स जो आप यूज़ करते हो उसके केसेस। ठीक है, उसके बाद आप कंप्यूटर अगर विंडो यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ आइकन्स बने होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे ये वाला, दिस इज़ द आइकन। इसकी भी एक डिज़ाइनिंग होती है, फिर इसको भी हम लोग रजिस्टर कराते हैं। उसके बाद आप एक स्क्रीन और देख रहे होंगे, एक फिगर और देख रहे होंगे जिसमें कि देखिए टायर का जो है वो है, फोटो है। तो ये टायर का आउटर स्पेस का फोटो है, ये भी एक तरह का डिजाइनिंग होता है। इसको भी लोग अपने अपना पेटेंट कराते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, अब जब आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन के केसेस की, तो ये बनाने के बाद उसके पास जब इसने डिज़ाइन को अपना पेटेंट कराया। ठीक है, अब पेटेंट होने के बाद ये स्क्रीन उसको रेवेन्यू जनरेट कर रही है जो उसका डिज़ाइनर है। ठीक है, तो इसका जो वैलिडिटी होती है डिज़ाइन की वो आपकी होती है 14 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन की, तो आपने देखा होगा कई जगह आपको लोगो दिखा मिला होगा, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यानी कि इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी को और सराउंडिंग को शो करता है। जैसे मैं आपको नेक्स्ट टाइम में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टेट्स की, ठीक है ना, तो हर स्टेट का इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में अगर मैं बोलता हूँ कि अ, तिरुपति तिरुपति जी का लड्डू। ठीक है, आपने खाया भी होगा, पता सबको पता होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति जी का लड्डू, तो वो क्या है, वहाँ का एक जोग्राफिकल इंडिकेशन है। आंध्र प्रदेश का लेदर, ठीक है ना, वो भी वहाँ पे क्या है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ मैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की, तो जैसे इसमें आपका आता है बनारस का ब्रोकेड्स। ठीक है ना, बनारसी साड़ी। ठीक है ना, लखनऊ का चिकन क्राफ्ट, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क। तो ये जो सब चीज़ें आपने देखी इसके अंदर, दीज आर कॉल्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली में क्या फेमस है, आपने देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, ये देखिए यहाँ पे बासमती राइस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में क्या फेमस है, बासमती राइस और फुलकारी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या फेमस है, ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर, देन कठपुतलीज ऑफ राजस्थान, और बीकानेरी भुजिया। ठीक है ना, ये तीन चीज इसमें फेमस है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपका राजस्थान की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इनकी भी क्या होती है, आपकी पेटेंटिंग की चीजें कराई जाती है कि ये इस स्टेट का पेटेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पे क्या है, आपका कश्मीर पश्मीना शॉल। ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। उसके बाद कश्मीर सोजनी क्राफ्ट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना, ऐसी हर एक स्टेट का अपना कुछ ना कुछ चीज़ें फेमस है जो कि गवर्नमेंट ने उसको पेटेंट कराया हुआ है, जिससे कि उस स्टेट का नाम जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं मिजोरम की, तो वहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा, मिजोरम में चिली बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अब अगर कभी आप जाएँ तो वहाँ पे, ठीक है ना, तो वो उसका पेटेंट है। ठीक है, तो हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ पेटर्न है जिसके उससे वो नाम उसका जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ की, जिसका नाम है ट्रेड सीक्रेट। आप लोग मैगी तो खाते होंगे सबके सब, कोका कोला भी पीते हैं। ठीक है ना, तो मैगी का क्या है, उसका जो मसाला है मैगी का, ठीक है, जो मैगी पाउडर है जो आप मैगी के अंदर डालते हैं, वो उसका एक ट्रेड सीक्रेट है। उसने आज तक इस चीज़ को कभी बताया नहीं, ना कभी पब्लिश करा किसी भी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है ना, वो उसका पेटेंटेड है। ठीक है ना, और वो मसाला कैसे बनाते हैं ये हमें आज तक नहीं पता। ठीक है ना, तो वो उसका पेटेंटेड है। ऐसे ही कोका कोला का ड्रिंक का फॉर्मूला, कि कोका कोला किस तरीके से अपने ड्रिंक को फॉर्मेशन करती है। ठीक है,
वो भी आज तक हमें पता नहीं है। ठीक है ना, तो जो उसकी रेसिपी है वो उसी के पास है, उसने कभी भी इसको पब्लिकली किसी को नहीं बताया कि कैसे वो ड्रिंक बनाती है, किस तरीके से वो करती है। तीसरा आपका हो गया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो गूगल की सर्चिंग एल्गोरिथम जो है, ठीक है ना, वो भी पेटेंटेड है। ठीक है ना, वो भी उसका ट्रेड सीक्रेट है गूगल का, जिसने कि उसने आज तक किसी को नहीं बताया कि किस तरीके से मेरी एल्गो सर्च करती है और उसमें क्या क्या फंक्शंस लगे हुए हैं। हमें आज तक इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेड सीक्रेट भी होता है, ये भी आपका आईपीआर के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें होता है कि आपका बेसिकली ओनर डज नॉट वांट टू रिवील, मतलब ओनर बताना नहीं चाहता है, एंड येट नॉट डिस्क्लोज पब्लिकली, और वो किसी भी चीज़ को पब्लिकली डिस्क्लोज करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब जो मेन चीज़ है हमारा, जो हमारे से रिलेटेड है हमारी फील्ड से, जैसे कि हम वी आर द ऑल आर द लर्नर्स। ठीक है, तो पेटेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कि हम लोग काम करते हैं, अब चाहे वो स्टूडेंट हो, फैकल्टी मेंबर हो, या कोई रिसर्चर हो। ठीक है ना, या कोई हायर एजुकेशन का स्टूडेंट हो। ठीक है, तो पेटेंट बेसिकली होता है क्या, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ए पेटेंट इज ए एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन विच इज आइदर ए प्रोसेस, मशीन, आर्टिकल फॉर मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है ना, इन चार चीज़ों के अंदर आती है। तो अगर आप कोई इन्वेंशन करते हो, ठीक है ना, तो आपका राइट है उस चीज़ को पेटेंटेड कराने का, गवर्नमेंट से पेटेंट कराने का। ठीक है ना, और उसके बाद फिर उसका रेवेन्यू लेने का। तो अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की पेटेंट के अंदर, तो प्रोसेस आपको बोलता है, जैसे मैंने छोटे छोटे एग्जांपल ले रखे हैं यहाँ पे, मेकिंग इंफ्रारेड हीटर टू रिड्यूस द कॉस्ट 25%। इसका मतलब है कि आपने कैसा इंफ्रारेड हीटर बनाया जो कि बिजली को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को 25% तक कम कर देगा कंजप्शन में। उसके बाद या फिर उसका आपकी जो कॉस्टिंग है वो भी 20% कम कर दोगे आप, एज कम्पेयर टू अदर इंफ्रारेड हीटर्स जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है। सेकेंड वन है आपका मशीन। मशीन में आपका आ गया कि आपने एक डिवाइस जनरेट करी है, मोटराइज डिवाइस। ठीक है ना, तो वो और मशीन, जैसे कि एक मशीन निकालती है 100 आउटपुट, तो आपकी मशीन निकाल देगी 200 आउटपुट इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, वो डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड वन है आपका आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग में जैसे आपका पेंसिल आ गया, चेयर आ गया। ठीक है, आपने कभी डॉम्स की पेंसिल देखी होगी, पहले आती थी सिंपल पेंसिल, जो अब पेंसिलें आ रही है उसमें थोड़ा ग्रिपिंग बड़ी अच्छी होती है, थोड़ा हल्का सा आपको फील होगा, बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है ना, उसके बाद आप चेयर, आप आजकल देखते होंगे आप मार्केट में बहुत सारी चेयर्स आ रही है जो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, जिसके अंदर कि आप पीछे बैठकर अपने पैर भी, आगे उसके नीचे स्टैंड भी लगा होता है, उसके ऊपर अपने पैर भी रख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल में आपका आ गया, और भी बहुत चीज़ें आती है इसके अंदर। फोर्थ है आपका कंपोजिशन ऑफ मैटर, जैसे कि कोई पेंट आपने बनाया, ठीक है ना, जो कि 7 कलर शो करता है वॉल के ऊपर। ठीक है ना, कोई ड्रग आपने बनाई, जैसे भी इंडिया ने कोवैक्सीन बनाई है कोविड की, कोविड 19 की। ठीक है ना, तो दीज ऑल आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में भी सबसे पहला पेटेंट हुआ था, वो बताना चाहूंगा मैं आपको, हिस्ट्री में है। ठीक है, तो इंडिया का जो सबसे पहला पेटेंट था, फर्स्ट पेटेंट था, वो एक सिविल इंजीनियर थे और इन्वेंटर थे जिनका नाम था जॉर्ज एल्फर्ड डी पेनिंग। वो कलकत्ता में थे। ठीक है ना, उन्होंने एक पेटेंट पहले फाइल किया था 1856 के अंदर, आपने स्क्रीन पे देखे होंगे, एन एफिशिएंट पंखा पुलिंग मशीन। तो उन्होंने एक पंखा पुलिंग मशीन बनाई थी। पहले हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फैन नहीं होते थे, तो एक पंखा पुलिंग मशीन थी जिसमें कि एक पंखा होता था, उसको हम या तो अपने हैंड से या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उसको और मूव कराते थे। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ का किया उसको को अपना पेटेंट फाइल किया था, सबसे पहला पेटेंट जो कि इंडिया का था। ठीक है, उसका नाम था एन एफिशिएंट पंखा पुलिंग मशीन। और आप इधर देखिए, इनका डिजाइन भी देख रहे होंगे। दिस इज ए दिस इज ए पंखा पुलिंग मशीन। ओके, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। ठीक। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको इम्पोर्टेंस क्या क्या है आईपीआर का। हमने जो बात तो कर ली अभी पेटेंट के बारे में, लेकिन पेटेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, इन पेटेंट रूल को हम क्यों अप्लाई करें। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंस, सबसे पहले इम्पोर्टेंस इसकी आती है कि आईपीआर प्रोवाइड इंसेंटिव टू द इंडिविजुअल्स फॉर न्यू क्रिएशन।
जो भी आप नई क्रिएशन करते हो उसका आपको एक इंसेंटिव भी मिलेगा इसके अंदर, ठीक है ना। अगर कोई कंपनी यूज़ करती है आपके पेटेंट को या फॉर्मूले को, तो वो आपको रॉयल्टी भी देगी उस चीज़ की। सेकंड वन, जो दूसरी चीज़ है इसके अंदर, आईपीआर प्रोवाइड जेन्युइन एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोगों ने उसे क्रिएट करा है, हमारे माइंड से वो चीज़ क्रिएट हुई है, ठीक है ना। तो वो जो प्रोडक्ट होगा आपका बिल्कुल जेन्युइन होगा और बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा। थर्ड है आपका इसमें कि प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग और टेम्परिंग विद हिज हर प्रोडक्ट विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम हिम हर, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो भी आप प्रोडक्ट आपने बनाया है, ठीक है ना, वो आपकी परमिशन के बिना वो यूज़ नहीं कर सकता, ना कि उसके अंदर कोई टेम्परिंग कर सकता है, ना कि उसके अंदर कोई चेंज कर सकता है। अगर वो चेंज करेगा तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है। तो विदाउट आपकी परमिशन कोई भी चीज़ ना तो वो यूज़ कर सकता है, ना कि उसको टेम्परिंग कर सकता है। फोर्थ इज दैट आईपीआर नेसेसरी टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट्स न्यू जॉब्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो आईपीआर की यूज़ करके आप अपनी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका आप क्रिएट कर सकते हैं नई जॉब्स को, ठीक है ना, नई इंडस्ट्रीज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें है इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंट्री के ऊपर, ठीक है, तो जैसे आईपीआर हमारी कंट्री को आत्मनिर्भर बना सकता है इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि जैसे आप देख रहे होंगे आजकल एक लोगो चल रहा है टाइगर वाला, मेक इन इंडिया, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो आईपीआर से आप कंट्री की इकोनॉमी भी जनरेट होगी, जो कि ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो सकती है, ठीक है ना, जा सकती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ जहाँ से मैंने अपना डेटा लिया है, ठीक है ना, उसके, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, ये यूट्यूब का लिंक है, अगर आपको कपिला के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट कपिला में कैसे क्या है, क्या चीज़ें, कैसे पेटेंट फायर किया जाता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग क्या है, कैसे काम करते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये हमारे कॉलेज का डेटा है जिसके अंदर कि हमने ब्रांच वाइज बताया गया है कि कौन कौन से अभी हम पेटेंट फायर करने जा रहे हैं। जैसे सीएससी की हम बात करते हैं, तो पेटेंट टाइटल हमें दिया है पीएमएलटी डिजिटल इक्विपमेंट सिलेक्शन, प्रिडिक्शन बेस्ड डिजिटल इक्विपमेंट सिलेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये कुछ पेटेंट्स हैं हमारे जो कि हमने भी फील्ड के हैं, ठीक है। थैंक यू। Thank you, sir. It has हाँ, been highly enlightening and an effectively motivating session. ओके। Thank you very much to all the students and faculty members who attended this session. Thank you.